So before we begin the circle, I would like to read the guidelines as always. And healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways to healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us. Because each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. So today we have with us Anita ji. She is a breast cancer survivor, a primary school teacher, and founder of Ansh Foundation. In January 2013, she felt a lump in her breast. She went to the gynecologist. Though the test couldn't confirm the diagnosis, so surgery and FNC test did confirm breast cancer. Yeah. Her treatment also included 6 sessions of chemotherapy and 25 sessions of radiation therapy. Her initial thoughts were why it has happened to her, why it's happening to her. She was so upset despite all the positive people around her. She could not fall asleep. The thought that gave her will and energy till today and will stay for the rest of her life is being a woman. I had to fight many outsiders and stand strong in many situations. Thus, why can't I fight something that is inside me? I can and I will do it. And as she says, you are strong enough to fight through this. I think that clearly shows your strong willpower and the courage which you know took in this journey. And I think in cancer, half of the battle is won if we have that strong willpower, mindset, and courage to go through the journey. And I have seen this with again and again with thousands of people, hundreds of people, know personally who could go through this journey and also come out of it successfully because of the approach that okay, yes, it has happened to me, but how do I move forward now? What approach should I take? What all things can I do? How do I control my treatment? How do I take charge of everything that is happening with me? Can I do something to make it better? Can I do something to change it? And people who were able to take that approach also won the battle as well. So we don't know what's going to be the outcome, but definitely we will all try. We always try our best to ensure that the journey is smooth, and we try our best into the last moment. And your journey, especially Anita ji, shows it's an example of that. So would like to hear from you how it began, and yeah, thank you. Thank you for this. Thank you, dear. I am Anita Singh. Hello, everyone. First of all, I would like to thank you, Zanko, for giving me this opportunity. And I am Anita Singh, pre-primary teacher. And my journey started in 2013. One fine morning in the month of January, I find, while taking bath, I find a small lump-like pimple in my right breast. So I felt it is something else. It is just not a pimple. But it was there's no pain, nothing was there. Then after 2-3 days, I went to doctor. I told her ki ma'am like this I find it. So she said ki she's very familiar with me. तो उन्होंने जस्ट ऐसे कहा कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. एंड मैंने बोला नहीं मैम, मुझे फील हो रहा है, यू जस्ट चेक इट. हार्डली शी फाइंड दैट लम्प. फिर मेरे दिमाग में भी ऐसा आया कि शायद कुछ नहीं होगा, ये मेरे दिमाग का जो जनरली वी यूज टू से ना कि दिमाग का कीड़ा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है. एंड फिर भी दिमाग में था. उन्होंने बोला अगर तुझे लग रहा है तो गो फॉर मैमोग्राफी. उसके बाद में मैं मैमोग्राफी के लिए गई. मैमोग्राफी को करवाने के बाद में रिजल्ट वाज नेगेटिव. इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरे फादर, आई एम इन जॉइंट फैमिली, देयर इज 16 मेंबर्स इन माय फैमिली. तो उनको पैरालिटिक अटैक आया मेरे फादर इन लॉ को. तो हम लोग उसमें बिजी हो गए, मुझे भी, क्योंकि इट वाज नेगेटिव, रिपोर्ट वाज नेगेटिव. तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी हो गया कि चलो. फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि कुछ तो है, मतलब वो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट. फिर और वो लंप इट वाज कंटिन्यू, मतलब वो अगर पिंपल होता या कुछ होता तो रिमूव हो जाता या कुछ भी हो जाता, ऐसा वाला था. देन अगेन आई वेंट टू डॉक्टर. शी सेड कि आप
FNAC के लिए चले जाओ। FNAC के लिए भी गई तो फर्स्ट रिपोर्ट वाज नेगेटिव, वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। फिर मैं एक पहचान के डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके पास में गई। उन्होंने बोला तुम गाइडेड करवा लो। लेकिन उस समय मुझे गाइडेड में थोड़ा सा ये लग रहा था कि वो इट इज ऑल्सो पेनफुल। तो आई सेड कि सर मैं इसको रिमूव करवा सकती हूँ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है रिमूव करवा लो। तो उसको मैंने रिमूव करवाया। रिमूव करवाने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट आई तो इट डिटेक्टेड एज कैंसर। और इन बिटवीन मुझे ये सब करते करते 3 मंथ्स करीब हो गए थे। एंड मेरे फैमिली मेंबर्स भी, जैसे क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ी थी, मुझे टेस्ट करवाना है, मुझे सोनोग्राफी करवानी है, तो सबको ये लग रहा, इवन माय हस्बैंड वाज सेइंग कि तुमको बीमार होने का शौक चढ़ रहा है क्या, जो बार बार ये बोल रही हो। इन जनरल ऐसा ही बोला जाता है, लेडीज को शायद बीमार होने का शौक, मतलब वो इन दैट वे। और मुझे लग रहा था नहीं मुझे करना है। और उसको जब करवाया, टेस्ट आया, तो इट्स ओके ठीक है ट्रीटमेंट ले लेंगे। डॉक्टर के पास में गए, प्रीवियस अर्ली स्टेज डॉक्टर साइड के जस्ट वो आपको वो रिमूव करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा, मीन्स ब्रेस्ट विल नॉट बी रिमूव, उन्होंने ऐसे ही बोला। फाइन। बाद में जब उन्होंने ऑपरेट किया तो उसमें मेरा राइट ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। उस समय तक जब मैं जा रही थी ऑपरेशन के लिए, इन दैट टाइम क्या था कि फैमिली मेंबर्स तो बहुत टेंशन में थे। माय मदर वाज देयर, माय यंगर ब्रदर वाज देयर, माय हस्बैंड वाज देयर। वो लोग बहुत अपसेट थे। एंड आई वाज कूल कि ठीक है, मतलब मैं उनको समझा रही हूँ कि ठीक है ना, मैं अभी आधे घंटे में आती हूँ, ओटी से बाहर आती हूँ। और दे वर अपसेट। वहां पे ऑपरेशन थिएटर में गई, जो भी हुआ थोड़ा सा मेरे साथ में, पता नहीं, ओटी का एक्सपीरियंस बहुत अजीब रहा है। इसके पहले मेरे मतलब बेटा जो था वो भी सीजेरियन है। उस समय भी मुझे एनेस्थीसिया के टाइम जल्दी से होश आ गया था। सेम एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे भी रहा है। इवन मैंने डॉक्टर को बता दिया था कि ऐसा मेरा उस समय हुआ था। स्टिल यहाँ पे भी सेम हुआ कि जब वो मुझे स्टिचेस दे रहे थे, एट दैट टाइम मुझे होश आ गया और मुझे पेन फील होने लगा। आई टोल्ड डॉक्टर कि डॉक्टर मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। स्टिल मतलब वो दैट पीरियड वाज वेरी मच पेनफुल, इतना कि मुझे ओटी में जाने से डर लग रहा था। नेक्स्ट टाइम जब मुझे स्टिचेस निकलवाने थे तो मुझे उसमें डर लग रहा था। एंड फाइन, फिर वो धीरे धीरे ठीक हुआ। लेकिन इस जब वो पीरियड निकल गया, अब आपको कीमो के लिए जाना है, तो क्या है कि कीमो की स्टेज में देख चुकी थी मेरी मदर इन लॉ की। मेरी मदर इन लॉ ने फेस किया था और उनको मैंने पूरे टाइम आई वॉज द हेल्पर, ये जो भी उनको करना है वो, तो मैंने उनकी कंडीशन देखी थी कि इट वॉज वर्स्ट। तो उससे मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरी कंडीशन क्या होगी। मेरे सराउंडिंग में सब लोग थे, सब बोलते थे कुछ नहीं होगा। शी वॉज ओल्ड, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यू आर यंगर, एट दैट टाइम माई एज वॉज 40 जब मुझे हुआ था। तो बोले तुम तो झेल जाओगी, कोई नहीं। फिर भी एक मन में जो नेगेटिविटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा भर गई थी सराउंडिंग में। मीन्स पूरे टाइम यही फील होता था लिटरली कि मुझे ही क्यों हुआ है, सब लोग अच्छे हैं, बस मैंने तो मतलब आई एम सब चीजों के डाइट के लिए मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, एक्सरसाइजेस शुरू से करती हूँ। हेल्थ वाइज आई एम नॉट दैट मच हेल्दी, मतलब फैट। तो क्यों हुआ है मुझे, स्टिल हो गया, इट्स ओके। मैं इवन एक चीज मेरे साथ में बहुत प्लस पॉइंट हुआ, और ये मैं हमेशा फील करती हूँ कि आपको जो डॉक्टर मिलते हैं वो अगर पॉजिटिव है तो कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है। मेरे साथ में यही हुआ कि जो मुझे डॉक्टर मिले थे, डॉक्टर BR श्रीवास्तव, वो इतने पॉजिटिव थे और वो बहुत ऐसा अध्यात्म से जुड़े थे। तो सेम क्वेश्चन मैंने उनसे भी बोला कि सर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है कि मैंने तो हमेशा मतलब मेरी डाइट को, इवन बीइंग फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली, हम कभी बाहर भी आउटिंग के लिए बहुत ज्यादा नहीं जाते, आउटसाइड फूड ईटिंग वाला हैबिट नहीं था, कुछ भी नहीं। मीन्स आई फील कि जब हमको जो रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं कैंसर के लिए, मैं वो सारे फॉलो करती थी। एज इन फॉर कैंसर नहीं, इन जनरल इट वॉज माई नेचर। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा काम किया। स्टिल ही सेड टू मी, इवन माई हस्बैंड, वी बोथ वर देयर। उन्होंने बोला बेटा तुमको जितना रोना है, एंड यू वोंट बिलीव कि डॉक्टर्स नॉर्मली उनके पास में इतना भीड़ रहती है, इतना क्राउडेड रहते हैं, स्टिल उन्होंने मुझे पूरा 1 घंटा दिया। इट वॉज मतलब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम।
कि 1 घंटा किसी को काउंसलिंग करना, और एज अ सीनियर डॉक्टर मतलब उनके पास में बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, उन्होंने पूरा 1 घंटा दिया। मी एंड माय हस्बैंड वाज सिटिंग देयर, और उन्होंने मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी बोला, आप दोनों को जितना रोना है आज के दिन रो लो, इसके बाद में कभी नहीं रोना है, आंख में आंसू भी नहीं लाना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आप ठीक होगे, ये मेरी गारंटी है। और लिटरली वी बोथ वर क्राइंग देयर। 1 घंटा तक हम लोग रोते रहे, एंड ठीक है, वो पूरा हमारा ड्रेन हो गया है कह सकते हैं। घर आए, लेकिन नेगेटिविटी तो भरी थी। रात भर मुझे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, कोशिश करती थी फिर भी नहीं आती थी। पूरे टाइम या तो उठ के बेड पर बैठी रहती थी या फिर घर में घूमती रहती थी, समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं पाती थी। फिर जैसे थॉट प्रोसेस चलती रहती है, पूरे टाइम थॉट प्रोसेस चलती रहती है, ऐसा है, ये है, बाद में क्या होगा। एंड माय सन वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तो ऐसा लगता था उसका क्या होगा, बहुत सारी चीजें जैसे चलती हैं। स्टिल ऐसे ही चलते चलते एक दिन मैंने यही सोचा कि लिटरली आई वाज थिंकिंग कि जब बीइंग अ गर्ल और वुमन, हम लोगों को बहुत सारी चीजों से फाइट करना पड़ता है। घर में जब होते हैं तभी भी, बाहर जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, बहुत सारी चीजें सभी ने फेस की है, मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की और मैंने बहुत स्ट्रांगली फाइट किया उन सब चीजों के साथ में। तो फिर तभी मेरे दिमाग में ये आया कि जब मैं इतनी सारी चीजों से लड़ सकती हूँ तो ये तो मेरे अंदर की चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। और अगर अपन इसके ट्रीटमेंट को नहीं देखें कैंसर के, तो इट इज जस्ट लाइक अदर बीमारी, मीन्स फीवर या कुछ भी है, अगर ट्रीटमेंट थोड़ा सा है अदरवाइज तो उसी तरह से है। तो सेम वे मैंने बस ये सोचा, और उस दिन से मुझे लगा कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई है और मैं ठीक होने लगी हूँ। जब मेरे अंदर ये वाला विश्वास आया, लिटरली मुझे महसूस होने लगा कि अब मैं ठीक हो रही हूँ। एंड मेरा ट्रीटमेंट 6 कीमोथेरेपी, पहले डॉक्टर ने अर्लियर ही डिसाइडेड 8 सिटिंग्स, फिर उसके बाद में उन्होंने चेंज करके जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखा या वॉट एवर जो भी, उन्होंने 6 कर दी इसको। एंड उसके बाद में जो अच्छा, कीमोथेरेपी के टाइम में भी कभी भी मुझे ऐसा वाला नहीं हुआ कि वेट लॉस हुआ हो ज्यादा, या ब्लड लॉस जो हो जाता है, हीमोग्लोबिन लॉस जो होता है, वो भी नहीं हुआ। उस चीज का मैं मुझे बहुत ज्यादा रहा। ये फैमिली मेंबर्स, आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली मेंबर्स, स्पेशली माय मदर। आई वाज विद माय मदर, वो मुझे, उन्होंने बोला कि यू शुड बी विद मी, इन लॉस को बोल के साथ में उन्होंने वहां पे ही रख लिया, और वो पूरा मेरा केयर करती है, मेरे ब्रदर्स केयर करते रहे। इवन माय नीज एंड नेफ्यूज, दे यूज्ड टू गिव मी, मतलब वो बीच में स्कूल से आए, कॉलेज से आए, दे यूज्ड टू गिव मी ड्राई फ्रूट्स, वो अभी तक कुछ नहीं खाया, ये लो ये खाओ। And my sister-in-law, they used to give me that coconut water, juices, मतलब टाइम टू टाइम they used to care me। और मैं इरिटेट हो जाती थी, मुझे ये नहीं खाना, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स होते ही है कीमोथेरेपी के, कि आपको कुछ खाने का मन नहीं होता है, छाले हो जाते हैं तो अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा 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 वो लोग मुझे पुश करते थे। अगर ऐसा वाला पुशिंग नहीं होता तो शायद मैं इतनी पूरी जर्नी में इतनी हेल्दी नहीं रहती। सेम इन द एट द टाइम ऑफ रेडियोथेरेपी, वो भी रेडियोथेरेपी की 25 जो सेटिंग्स थी, उस टाइम तक इनफ स्ट्रांग हो गई थी कि अब तो बस रेडियोथेरेपी करनी है। इवन जैसे कि जो भी निकला है रेडियोथेरेपी से, वो जानता है कि पूरी स्किन बर्न हो जाती है, तो मेरे पूरा यहाँ से लेके पूरा बर्निंग हो गई थी, स्किन निकल रही थी वो सब। लेकिन स्टिल उस टाइम इवन आई यूज्ड टू गो अलोन फॉर दैट रेडियोथेरेपी, और उससे भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके निकल गए। एंड फाइनली टुडे आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग इनफ। very inspiring to know this, Anita ji. Right, आप कौन सी सिटी से हैं? मैं एक्चुअली आई एम लिविंग इन इंदौर, इंदौर। मगर मेरा ट्रीटमेंट भोपाल में हुआ है। माय मदर इज स्टेइंग इन भोपाल। अच्छा, ओके ओके। तो अच्छा, आपका, बट आप इंदौर में रहते हैं, तो आप तो फिर संगीनी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, संगिनी से तो मैं मतलब दे आर माय फैमिली, सेकंड फैमिली। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। इंदौर से है तो डेफिनेटली जुड़े हुए होंगे ही। ग्रेट ग्रेट। या सो अनीता जी, जैसे आपका जब डायग्नोस हुआ था और आपने बताया कि हाँ, इस वक्त वो काफी शॉकिंग सिचुएशन था सबके लिए, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है ऐसा, राइट?
आपको साइड इफेक्ट्स भी आपने बताया कि हाँ कम थे बट थे, तो आपको क्या चीज थी जो कंटिन्यूअसली इंस्पायर करती थी कि नहीं मुझे इससे निकलना है अच्छे से, टाइम कुछ टाइम की बात है फिर मैं ठीक हो जाऊंगी? व्हाट वाज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू? एक्चुअली फर्स्ट मोटिवेशन वाज माय मदर। मेरी मम्मी बहुत पॉजिटिव रहेगी हमेशा से। वो पूरे टाइम बोलती थी कि तुमको कुछ होना नहीं है, मीन्स वो हर समय इंस्पायर करती थी। इवन जैसा हम शायद सभी बच्चों का होता है कि मदर से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, स्टिल उनकी पॉजिटिविटी बनी रहती थी। वो पूरे टाइम सराउंडिंग में घूम के नहीं बेटा ऐसा होना है, नहीं बेटा ये हो जाएगा। एक उनकी पॉजिटिविटी थी। कहीं ना कहीं मेरा बेटा था कि मुझे उसको बड़ा करना है, उसके लिए मुझे रहना है, स्ट्रांग रहना है। बस इन्हीं सब पॉजिटिविटीज के साथ में धीरे धीरे करके मतलब मैं ओवरकम हो पाई इससे। ओके, वंडरफुल। और आपका बेटा कितना बड़ा था उस वक्त? ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड। काफी छोटा। ओके, राइट राइट राइट। और आपने बताया कि आपको मेस्किटोमी नहीं हुआ, आपको लंपेक्टोमी हुआ था क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए? पार्डन? आपको कौन सा सर्जरी हुआ था? ब्रेस्ट रिमूव हुआ था। बिफोर दैट उसमें इन्होंने लंप रिमूव किया था। अच्छा, ओके, लंप रिमूव किया था। हाँ हाँ, उसके बाद में उन्होंने फिर डायग्नोस होने के बाद में फिर प्रीवियसली दे सेड कि ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया जाएगा, पर इन द ओटी दे फाइंड इट, और उन्होंने पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया। ओके। कई बार अनिता जी ब्रेस्ट कैंसर के अराउंड बहुत ही टैबू बना हुआ होता है, वेयर यू नो पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, और यू नो कि काफी बड़ी चीज हो गई अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हो गई है, तो उनको लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, एक्चुअली हाँ, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इवन प्रीवियसली जब मुझे हुआ था तो लोग जो मेरे पास में आते थे वो ऐसे ही देखते थे कि ओह इनको ऐसा हो गया, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने खुद ने कुछ ऐसा अपराध कर दिया है, ऐसा वाला फील आता था स्टिल। लेकिन आज की डेट में मैं वो महसूस करती हूँ, और जो जैसे हम, आपको पता है कि मैं संगिनी से जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोग खुद होके जैसे अगर किसी को थोड़ा सा लगता है, या फिर मेरे सराउंडिंग में जितनी लेडीज हैं, we used to tell them about the examination and everything कि आपको हमेशा इस चीज को एग्जामिन करते रहना है, आपको जानना है ये किसी को भी हो सकता है। और क्लियरली मतलब मैं हमेशा बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस चीज को हाइड करने का कोई रीजन नहीं लगता है मुझे। अच्छा, ओके। और जब लोगों को किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आपके हिसाब से व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू नो एंड एक्सपेक्ट व्हेन दे आर डायग्नोस्ड विद दिस कैंसर? फर्स्ट दे हैव टू गो फॉर द डायग्नोसिस। जो भी है उनको ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए जाना ही चाहिए। और दूसरी चीज, मुझे एक दो जगह से, मतलब एक दो क्या 3-4 जगह से मुझे ऐसा पता चला है कि लोग ना एलोपैथी की जगह दूसरे मीन्स होम्योपैथी या आयुर्वेद में जाते हैं। फाइन, दिस इज गुड। आप आयुर्वेद या होम्योपैथ में जा रहे हो, मैं उनको डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन जो कैंसर का है कि कैंसर बहुत स्पीड से बढ़ता है, उतनी स्पीड से एलोपैथी ही ट्रीट कर सकता, आयुर्वेद या होम्योपैथ ट्रीट नहीं कर पाता है। लेकिन अभी अभी मैं एक लेडी से मिली जो शी इज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड शी इज सेइंग कि मैं तो इसे आयुर्वेद से अपने को ट्रीट कर लूंगी। मतलब उनका पूरा मैंने ब्रेन वॉश किया। आई टोल्ड देम कि नहीं, आपको एलोपैथी जाना पड़ेगा, आप आयुर्वेद ले रहे हो, आप इम्यूनिटी के लिए दूसरी चीजों के लिए ले लीजिए, साथ साथ में वो भी कीजिए, लेकिन ये बहुत नेसेसरी है। तो ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा अभी अभी देखी, क्योंकि लोगों में अभी आयुर्वेद का क्रेज बहुत बढ़ रहा है, तो वो सारे चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो बेस्ट अप्रोच रहती है कैंसर में कि जब आपको मेनी टाइम्स पीपल डू दिस मिस्टेक ऑफ गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव व्हेन द स्टैंडर्ड क्योर इज अवेलेबल। तो जब आपको पता है कि क्योर अवेलेबल है ऑलरेडी साइंस में, तो आपको वो चीज फॉलो करनी चाहिए। एंड देन अगर ऐसा है कि हाँ, जैसे कई बार डॉक्टर स्टेज 4 में बोल देते हैं कि यू नो इतना टाइम है या फिर आपको क्योर नहीं मिल सकता है, बट हम लोग जितना भी पॉसिबल है विल नो डू द बेस्ट। बट हाँ, अभी इंटेंट क्योरेटिव नहीं है, अभी इंटेंट में भी पैलेटिव है, मे बी यू नो लाइक ट्रीटेबल है बट क्योरेबल नहीं है।
तो उस केस में वी नीड टू फाइंड कि हम लोग के लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। बेस्ट अप्रोच हमेशा कैंसर में यही होती है कि वी नीड टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टुगेदर। मेडिकल भी करो, उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी करो, बट ऑल्टरनेटिव करना बहुत रिस्की है। ऑल्टरनेटिव बिल्कुल का मतलब बिल्कुल। या तो आप एक चीज ये करो या फिर वो करो। तो इनफैक्ट कई लोग ये बोलते हैं कि वी विल फर्स्ट गो फॉर ऑल्टरनेटिव, ट्राई फॉर 3 months एंड देन विल गो फॉर, अगर उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोग मेडिकल करेंगे। तो वो काफी risky हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने बताया बिल्कुल कि कैंसर कई बार बहुत तेजी से फैलता है एंड उस वक्त बहुत तेजी से टाइम भी फैलता है। एंड नेचुरल चीजें टेक्स इट्स ओन टाइम, 3 months 6 months टू शो द रिजल्ट्स। तो जब क्योर अवेलेबल है तो डेफिनेटली मेडिकल से स्टार्ट करना चाहिए। एंड बट इट्स बेटर टू मैनेज, जैसे आपने बताया, इम्यून बूस्ट करने के लिए, साइड इफेक्ट्स मैनेज करने के लिए, बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए वी शुड गो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री। उसमें भी कई तरह की होती है कि आपकी डाइट एंड मेटाबॉलिक अप्रोचेस होती है, आयुर्वेदा भी होता है, और न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, एनर्जी एक्सरसाइज एंड मूवमेंट थेरेपीज होती है। तो ऐसे करके देर आर 100 कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज दैट आर अवेलेबल, बट देन science says that all 100 are not applicable on all 100 types of cancer patients. So again, based on the research and science, some will be applicable on particular profile for cancer patients, कि उनका स्टेज क्या है, कौन सी ड्रग्स पे हैं अभी वो, कौन सा ट्रीटमेंट हो चुका है, कोमॉर्बिडिटीज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके बेसिस बिल्कुल पूरा होता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंटीग्रेटिव अप्रोच बोलते हैं, कि इंटीग्रेटिव अप्रोच लेके चलें, विच इज द सेफेस्ट अप्रोच, क्योंकि फिर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप बहुत सेफ अप्रोच ले रहे हो। So it's going to definitely improve the clinical efficacy of the medical treatment also, and managing side effects also, and बिल्कुल। improving quality of life and extending life wherever possible. तो आपने काफी सही चीज बोली, and I hope everybody learns from this, that not to take the risk, rather go टेक for रिस्क। what is the best out there. So thank you for sharing your thoughts on that. राइट। सो जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था तब आपका रूटीन क्या रहता था? बिकॉज मैं समटाइम्स नो पीपल व्हेन दे आर टेकिंग द ट्रीटमेंट, दे टेंड टू, बिकॉज दे आर नॉट वेल फिजिकली एंड मेंटली, दे आर काइंड ऑफ ओके, रेस्ट ज्यादा करते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, वो एक बड़ी गलती करते हैं लोग। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था? तो व्हाट वर योर लाइफस्टाइल? बिल्कुल। एक्चुअली इस चीज में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट खुद से ही थी, क्योंकि जैसे कि उस समय रूटीन, जैसे आप बोलते हैं रेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, पर मुझे रेस्ट करने का एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं आता था उस समय। और आई एम गुड रीडर और गुड लिसनर ऑल्सो, तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। तो म्यूजिक, अपनी स्टोरीज पढ़ रही हूँ या स्टोरीज सुन रही हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ एट दैट टाइम की, अगर इमीडिएट मुझे कीमोथेरेपी हुई है तो मैं स्टोरीज सुनने में वो करती थी, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ रीडिंग करती रहती थी। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि मेरी मदर साथ में थी, तो वो ब्रह्म कुमारी जाती हैं, तो उनका मेडिटेशन मतलब वो मुझे बताती थी कि तुम ऐसे मेडिटेट करो, ये करो, थोड़ा सा प्रोसेस उनके साथ में भी वही सब करती थी। थोड़ा वॉकिंग, मतलब बाहर, घर के बाहर ही थोड़ा सा वॉक करना, ऐसा वाला, इतना कि थोड़ा सा शरीर को थकान भी हो जाए और एकदम एग्जर्शन नहीं हो। सेम वे इवन मैं कुकिंग में हेल्प, मतलब वो सबके घर के भी काम जितने मैं कर सकती थी इजी वे में, वो सारे काम करती थी। किसी चीज को ऐसा वाला इग्नोरेंस वाला नहीं करती थी कि नहीं करना है। इवन बाहर जाना भी, ये सब भी मेरा था कि बाहर कहीं जाना है तो वो भी जाती थी, प्रिकॉशंस रखती थी, बाहर का नहीं खाना पीना है, वो सब चीजें जैसा होता है। अदरवाइज मेरे रूटीन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे। बस एक चेंज था, क्योंकि मैं आई एम प्री प्राइमरी टीचर, तो वो 1 ईयर का मैंने गैप ले लिया था। वो 1 ईयर मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में उनको कोल्ड है, कफ है, तो वो हमको जल्दी कैच कर लेता है। बस इसलिए मैंने 1 ईयर के लिए गैप ले लिया था। अदरवाइज मेरा रूटीन बिल्कुल सेम था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। हार्ड वर्किंग कुछ ऐसा वाला नहीं करती थी जो मेरे बॉडी को एक्सर्ट करे, अदरवाइज सेम उसमें ही पूरा चल रहा था मेरा। ओके, समझ गए। इनफैक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है दैट हैविंग योर पर्पस आल्सो विद यू व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द जर्नी। तो काफी आई सी कैंसर एज अ डिजीज व्हिच कंप्लीटली चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ एंड गिव्स यू अ डिफरेंट मीनिंग टू योर लाइफ। तो या, सो अनीता जी, आप केयर गिवर भी रह चुकी हैं और आप पेशेंट भी रह चुकी हैं। तो जब आप पहले केयर गिवर थे और फिर आपको जब खुद को ये बीमारी हुआ, तो क्या आपके सोच में, थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज आया? क्योंकि I have seen the difference in me when I was a caregiver and when I'm sick.
सो दोनों तो आपका क्योंकि कई बार केयर गिवर पेशेंट को समझ नहीं पाते हैं, पेशेंट केयर गिवर को समझ नहीं पाते हैं, और वो नोकझोंक हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलते, हमेशा बिल्कुल। चलती है। तो आप उसके बारे में शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे आपने बोला, मैं केयर गिवर थी, मदर इन लॉ को पूरे टाइम खिलाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था। उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिशेस जो उनको पसंद आए, जो उनके लिए हेल्दी हो, वो सब करते थे। एंड व्हेन आई वाज पेशेंट, तो क्या मुझे ना खाने में शुरू से बहुत ज्यादा नखरे नहीं है। खाते नहीं बनता, ये अलग चीज है, पर ये है कि मुझे अपना एक हेल्दी फूड लेना है, स्टमक फुल करना है, ये एक वो था। तो और जैसे कीमो के बाद में वैसे भी टेस्ट नहीं आता, फूड का टेस्ट पूरा खत्म हो जाता है। इवन राइट नाउ जो मैंने उस टाइम पे जो फूड ज्यादा खाया है, वो मुझसे अभी भी नहीं खाया जाता। इवन ड्राई फ्रूट्स में जो मैं उस समय खाती थी, वो अब मैं खा ही नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा ये चेंजेस है फूड ईटिंग हैबिट में। एंड बस ये है कि उस समय मेरे साथ में ये था कि मदर इन लॉ अगर नहीं बोल रही हैं, उनको इंसिस्ट करके तो खिलाती थी, पर जिद नहीं करती थी। मेरे साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने मना किया है, तो मेरे सराउंडिंग्स में इतने सारे लोग थे कि वो मुझे ना मेरे साथ में जिद करने लगते थे। एक बार मम्मी आ गई, फिर मतलब फैमिली मेंबर्स वन बाय वन एक एक जन आता जा रहा है, वो देता जा रहा। फाइनली ये होता था कि उनको सामने से हटाने के लिए आपको वो फूड ले लेना है, तो फिर खत्म, फिर सामने कोई भी आना बंद कर देगा। बस ये डिफरेंस मुझे मिला। Right, right, right. Always I see that caregiver wants best for the patient, and उस चक्कर में वो बोलते हैं आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी खा लो, अभी उठो, अभी बैठो, अभी ये करो। पेशेंट को लगता है कि मेरा डायग्नोसिस हुआ है, लेकिन कंट्रोल मेरा खुद की लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर कुछ और बोलते हैं, केयर गिवर कुछ और बोल रहे हैं। सो उस वक्त उनकी विशेष को, उनकी क्या प्रायोरिटीज है, वो कैसा चाहते हैं, उसके साथ में एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैरियर्स को भी अगर बाहर से हेल्प मिल रही है तो लेनी चाहिए, पूछनी चाहिए, मांगनी चाहिए हेल्प, क्योंकि उस वक्त उनको भी केयर की डेफिनेटली। जरूरत होती है। सो या थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सो अनिता जी, जब हम इस जर्नी से निकलते हैं, सो sometimes we are always grateful for small things that happen to us. एंड आपके लिए सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड मूवमेंट क्या रहा इस जर्नी में? एक्चुअली आई एम थैंकफुल टू एवरीवन ऑफ माय सराउंडिंग्स। जैसे मैं मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए थैंकफुल हूँ, मेरी फ्रेंड्स के लिए थैंकफुल हूँ। जो मेरे साथ में थे, वो लोग इवन डेली दे यूज्ड टू कॉल मी, और कॉल करके दे यूज्ड टू डिस्कस मी एनीथिंग। मतलब कई बार तो ऐसा लगता था व्हाई दे आर कॉलिंग मी, व्हाई दे आर डिस्कसिंग मी। उस समय मुझे लगता था, लेकिन वो मेरे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो दे यूज टू मेक मी हैप्पी। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, एवरीवन सराउंडिंग मी, इवन डॉक्टर्स आल्सो। Got it. Okay. What is that one thing that you want to share with everybody who is fighting this battle today? चाहे मुझे तो लगता है कोई भी स्टेज में फर्क नहीं पड़ता है, अगर राइट फॉर्मूला पता है कि मुझे क्या करना है, जो कि मेनली स्टेज 4 तक आके पता चल जाता है कि ये चीजें मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगी। हम लोग कभी गलत डिसीजन लेते हैं, मैंने भी बहुत लिए थे, लेकिन फाइनली लास्ट में आके पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो लोग अभी इस जर्नी से निकल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि आपको बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि ये चीज होता है तो शायद लाइक माइट हेल्प यू, वो आपके लिए क्या मैसेज रहेगा? एक्चुअली दे हैव टू गो फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। एक तो सबसे पहले ये, जब भी उनको पता चलता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही है। डॉक्टर को कभी भी डिनाई नहीं करना है। डॉक्टर ने ये बोला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डॉक्टर्स बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं यार कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं या वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो डॉक्टर को कभी भी डिनाई नहीं करना है। फूड जितना प्रॉपर फूड है हम ले सकते हैं, वो लेना है। लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि करना ही पड़ता है, आप चाहें कि नहीं चाहें, करना ही पड़ता है। आपके जब कीमो चल रही है, उस टाइम में आपको चेंज करना पड़ता है। ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि बहुत सारी चीजें लाइफ में चेंजेस लेकर आ जाती हैं। तो बस फॉलो योर एक्चुअल, मतलब रियल, सॉरी, प्रॉपर लाइफस्टाइल, इट शुड बी देयर। कि हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा प्रॉपर बैलेंस्ड करना पड़ेगा हमको, एक्सर्शन ज्यादा नहीं लेना है। एंड
डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं उनको फॉलो करना है हमको, यही मेरे सजेशंस हैं। राइट, थैंक यू। या आई थिंक ये सब चीजें साथ में बहुत हेल्प करती हैं। एंड मैंने जितने लोगों से भी लाइक आई रेड मेनी कैंसर हीलिंग स्टोरीज, टॉक टू मेनी ऑफ देम, दिस इज अ कॉमन फॉर्मूला ऑफ सक्सेस और टू ट्रीट, टू हील, टू क्योर, कि मेडिकल के साथ में आप एंटी कैंसर डाइट भी लें, और जो कि क्लिनिकली आपके लिए अप्रूव्ड होनी चाहिए डॉक्टर से, जो कि कौन कौन न्यूट्रिशन बता सकती हैं आपको, राइट न्यूट्रास्यूटिकल्स। कई बार लोग गलती करते हैं एक दूसरे की सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, और कई बार वो क्लैश करता है ट्रीटमेंट के साथ में, तो पता होना चाहिए वो कौन सी है। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉकिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट एक फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, एक इमोशनल वेलनेस एक्टिविटी जरूर आपके लिए। रीडिंग और लिसनिंग था अच्छे सा, तो वो है, प्लस नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना, वट एवर गिव्स यू पीस, पीस ऑफ माइंड बेसिकली, कि जो अच्छा लगता है जहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करके। उसके साथ में आप इनपुट, बॉडी का इनपुट क्या है, विच इज फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, मेडिसिन, एंड जो आपके थॉट प्रोसेस है। सो हाउ डू यू नो लाइक सेल्फ हीलिंग हेल्प्स अ लॉट। सो कई बार हमने पावर ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की है, एंड कितने लोगों को मैंने जानती हूँ मैं जिन्होंने उसी से अपनी सेल्फ हीलिंग भी की है, कि आई एम फीलिंग बेटर। तो आपकी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बातों को सुनती है, तो आप जब उसको इनकलकेट करते हैं तो थर्ड प्रोसेस अपने द मिस्टिक लॉ, इट कैचेस दोज वाइब्रेशंस एंड गिव्स इट बैक टू यू। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट कैन बी डन, एंड कोई इसका एक फॉर्मूला नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि ये करने से कैंसर ठीक हो जाएगा, बट डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट। देयर आर मेनी रेकी प्रैक्टिशनर्स, एनर्जी हीलिंग होती है, तो किसी को भी अगर एनर्जी हीलिंग, जिसमें भी अगर कुछ हेल्प चाहिए, तो आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद सर्वाइवर्स ऑल्सो, डेफिनेटली कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स ऑल्सो। बट हाँ, ये सारी चीजें हम साथ में करके, हैविंग गुड कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट, ये सबने शेयर किया है, आप सबने इनफैक्ट शेयर किया है कि फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। सबके पास नहीं होता है स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, बट दैट हेल्प्स अ लॉट। अगर फैमिली नहीं है तो फ्रेंड सपोर्ट, फ्रेंड नहीं है तो कम्युनिटी सपोर्ट, बट कुछ सपोर्ट होना जरूरी है। दैट इज वेयर वी हैव फॉर्म दिस कम्युनिटी, कि अगर किसी को भी कुछ भी बात करनी है, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल सोल्स हु ऑलवेज से कि यू नो हमें, हम हमेशा हेल्प करने को, हम हमेशा कंपेनियन बनने को रेडी हैं। सो दोज थिंग्स मैटर्स अ लॉट, बिकॉज एक जो पर्सन ऑलरेडी इस जर्नी से निकल चुका है, वो पर्सन हमेशा सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। सो इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरे विनर से, विजेता से कनेक्ट करें, एंड आप सब लोग हैं उसके लिए। सो थैंक यू सो मच, एंड हैविंग दैट राइट अप्रोच एंड डूइंग राइट थिंग्स एट द राइट टाइम इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि आप पता है कि कैंसर में देर नहीं कर सकते हैं। सो या, थैंक यू। So, अनीता जी, एवरी क्राइसिस इन लाइफ टीचर्स अस सम लेसन्स। जब आपकी लाइफ में क्राइसिस आया था, आपको क्या लेसन सिखाया इसने? मुझे लगता है कि जैसे बोलते हैं लाइफ इज प्रेशियस, और उसको ना बहुत अच्छे से खर्च करना चाहिए। मीन्स यूं ही नहीं ऐसे उड़ा देना चाहिए। जैसे हम जब तक कैंसर नहीं हुआ था, हम लोग लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे थे। अब लाइफ को खर्च करना मीन्स कि हम, जैसे मैं अंश फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। अंश फाउंडेशन या संगिनी से जुड़ी हूँ। सबसे पहले तो मैं संगिनी से जुड़ी, उसके बाद में 2017 में हम लोग ने अंश फाउंडेशन डाला। तो उस समय अच्छा, बहुत अच्छा सा वो हुआ हमारे साथ में, संयोग बोलेंगे कि जब हमने प्लान किया तो हम अनुदी के पास में गए, अनुराधा जी के पास में गए, और वी सेड कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं जो हम इससे रिलेटेड करना चाहते हैं, मीन्स अंश फाउंडेशन रिलेटेड करना चाहते हैं, तो क्या हम कैंसर सर्वाइवर्स के साथ में मिलके कुछ कर सकते हैं। देन वी प्लान अबाउट फैशन शो, और हमने, हमारा सबसे फर्स्ट इवेंट था कि संगिनी की जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं उनके साथ में फैशन शो। इट वाज मतलब बहुत ही अच्छा रहा, वेरी मच सक्सेस इट वाज, जो फर्स्ट हमारा था। उसके बाद में जैसे हमने उसके लिए, अंश फाउंडेशन के लिए हमने सोचा, जब हमने अनु दीदी से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है ये बहुत, मतलब एक बहुत बड़ा कुआं है, तो तुम उसको, अपन उसको भर नहीं सकते हैं, तो वी कैन गिव समथिंग। that time we gave our motto about अंश फाउंडेशन की फ्रेग्रेंस ऑफ हैप्पीनेस। हम पूरा तो किसी को खुश नहीं कर सकते, मगर एक छोटी सी फ्रेग्रेंस दे पाए हैप्पीनेस की, इट विल बी मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। फ्रॉम दैट डे हम साल में कम से कम 4 या 5 इवेंट्स करते हैं
अंश फाउंडेशन से रिलेटेड, और इसमें लिटरली वी वांट टू गिव सम हैप्पीनेस टू द पीपल। अलग अलग तरीके से करते हैं हम लोग ने। ब्लाइंड लोग स्कूल में किया, वहाँ पे म्यूजिक कंपटीशन किया। तो मुझे लगता है कि लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा सिखा दी इस कैंसर ने, कि लाइफ को अपन सिर्फ खुद के लिए खर्च कर रहे थे, अब सबके साथ में जब मिलके करते हैं तो एक अलग हैप्पीनेस देता है। Right, right, definitely. Say, आपका any one line message that you want to share with the world? इन सेम वे कि जीवन बहुत कीमती है, इसे यूं ही नहीं खर्च करना चाहिए, है ना। और जो मुश्किलें हैं, तो मतलब मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो मैंने लिखा मुश्किलों से जरा संभल के चलना है दोस्त, क्या जाने मुश्किलें ही तेरा मुकद्दर बदल दें। तो इस टाइम तो मेरा मुकद्दर मेरी मुश्किलों ने ही बदला है। Wow, thank you. Beautiful, beautiful. आप बहुत अच्छा लिखती हैं. Wow. I think you would love to hear from others also about their experience of today's circle, and also सब लोग कोई ना कोई जर्नी से निकले हैं. So बिल्कुल। yeah, we'll start with Pranabda. So happy to see you today. Yeah, thank you. Yes, Pranabda. नमस्ते अनिता जी एंड नमस्ते। डिम्पल जी। आपका लाइफ जर्नी सुना, बहुत अच्छा लगा। यू हैव इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड एंथुसियाज्म एंड पावर फ्रॉम विद इन। एक बात बताएंगे आपको, जो आपका जो हेयर है वो केमोथेरेपी के लिए हेयर तो लूज करता है ना। चला गया था हेयर, चूल। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। आपका हेयर चला गया था केमोथेरेपी के लिए, केमोथेरेपी का इफेक्ट के लिए। अच्छा अनीता जी। हाँ हाँ जी जी, कीमोथेरेपी में मेरी फर्स्ट कीमो के बाद में मेरा पूरा हेयर लॉस हो गया था। हेयर लॉस, तो हाँ जी। जिस टाइम हेयर लॉस हुआ आपका मेंटल कंडीशन कैसे थे, और उनके लिए हेयर लॉस के लिए ये पूछना है। एक्चुअली सर आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि जैसा मैंने पहले बताया कि आई वॉज केयर गिवर ऑफ माई मदर इन लॉ, तो उनका मैंने हेयर लॉस देखा था। इसमें इस चीज में मैंने सबसे ज्यादा, मुझे जो टेंशन था कि मैंने हेयर लॉस होगा तो वो मेरे घर में नहीं दिखना चाहिए, तो आई बिकम बॉल्ड। मैंने खुद ही अपना हेयर वो करवा लिया था। एक्चुअली यू हैव बीन लर्न केयरिंग योर मदर इन लॉ, इजंट इट? अच्छा, आई जस्ट कुछ नहीं बताएंगे। आपका स्माइल जो है, टू मी इट सिंबलाइजेस लव इन यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। योर स्माइल सिंबलाइजेस लव, एंड लव हील्स कैंसर। थैंक यू, थैंक यू। लव हील्स पेन। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Pranabda. Very beautifully said. Love heals cancer, so love can do miracles. Thank you. Yeah. Okay, okay. Thank you. Anuradha ji, would you like to share? You're trying. मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है। I know आप क्या कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी तोशी, इतने अच्छे से तुमने बोला और पूरा इतनी अच्छी से चीजें बताई। और मैं बताना चाहती हूँ तोशी इज सच अ ब्यूटीफुल सोल, बहुत ही डोसाइल है और हमेशा अपनी फुल एनर्जी, और जैसा प्रणव जी बोले कि इतनी प्यारी स्माइल के साथ में शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरीवन। तो it was a great success working with Ansh Foundation for the fashion show of Sangeeni. Once again, great going, Toshi. Thank you, Didi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, अनुराधा जी। आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे डाइट वगैरह के बारे में। सो मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। इट इज बेसिक टिप्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो इट हैज 5 pillars. Nourish yourself talks about food, what kind of healthy food we should have. Again, condition to condition बहुत different करता होता है, but still good to have guidelines. Staying fit, which talks about the physical wellness. Keep calm, उसमें भी tips and tricks है. It's a very handy book जो tips and tricks है कि हम लोग क्या क्या चीजें शुरू कर सकते हैं, implement कर सकते हैं, so that we can walk on the path of wellness. Next is cancer proof your home, कि हम लोग जो chemicals वगैरह होते हैं कैसे हम उसका
we can remove that from our home. And the next one and the last but not the least is get community support. So what are the things that we can do for that? So I think आप लोगों को since few people were asking for it, so ये help करेगा. But again अगर कुछ कभी ऐसा होता है कि लोग mistake करते हैं कि अगर renal condition है तो wheat grass लेते हैं सोच के कि अच्छा wheat grass तो कैंसर में help करता है, but wheat grass renal condition kidney में help नहीं करता है, damage करता है. तो उन चीजों का ध्यान रखिएगा, इसलिए बेटर होता है कि एक्सपर्ट से बात करके. बट दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस दैट विल हेल्प यू. सो थैंक यू. एंड या नेहा मेहुल इज सेइंग अनुराधा जी हेलीकॉप्टर में है. ओके ग्रेट. या मेहुल, वुड यू लाइक टू शेयर? Yeah, definitely. So Anita ji, it was very nice to hear your story. And आपको देख के लगता ही नहीं है कि ना आप ये सब में से पास थ्रू एकदम नॉर्मल आप बात करते हो वगैरह. इट्स सो नाइस. और आई अग्री विथ सो मेनी थिंग. मतलब आपने सभी जो बातें की ना सब मैं अग्री करता हूँ. मैं भी स्टेज 4 सर्वाइवर हूँ और मैं भी काफी लोगों को मतलब ना जो मुझे पूछते हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि क्या करना चाहिए. जैसे आपने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में लोग जाते हैं तो काफी लोगों को मैं बोलता हूँ, लोग नाराज भी हो जाते हैं मुझसे कि ये गलत बात कर रहा है. तो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ. अभी आपको एक शॉर्ट में एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप शायद उसको यूज कर सकते हो आगे. कि कैंसर जो है वो एक बुलेट ट्रेन है, बहुत स्पीड में जाता है. और बाकी जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है वो मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन है, धीरे धीरे वो कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे. तो अगर बुलेट ट्रेन को रोकना है तो ट्रैक उखाड़ दो या कुछ करो, ब्रेक तोड़ दो या कुछ भी करो. तो दैट इज रेडिएशन, दैट इज ऑल सर्जरी एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वो शायद थोड़ा उनको वो रिलेट करते हैं. बट लेकिन आप जो भी कर रहे हो और अनुराधा जी वगैरह आपका ग्रुप तो है तो वो बहुत ही फेमस हो गया अभी इंडिया में. मतलब आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हियर योर स्टोरी एंड कीप डूइंग गुड जॉब. आई डेफिनेटली कनेक्ट विद यू. अगर कोई मेरे कांटेक्ट में आते हैं जिसको आप हेल्प कर सकते हो, आई कैन गेट देम कनेक्टेड विद यू. थैंक यू. श्योर सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट मेहुल. हाय नेहा. हाय डिम्पल दी. हाय हाय दीदी, कैसे हैं दीदी आप? दीदी दीदी से यहाँ मिलना मतलब एकदम. आज मुझे अनुराधा आंटी ने सुबह बताया था कि आज तोशी दीदी का है, मिस मत करना. मैं मतलब अभी मुझे 2-3 दिन पहले कीमो लगा था तो आज सुबह तो मैं एकदम स्टेबल भी नहीं थी. बट मैंने सोचा था नहीं, अब तोशी दीदी का मुझे अटेंड करना है. तोशी दीदी से मैं मिली थी संगिनी के फैशन शो में. हमने बहुत मस्ती करी थी. जब मुझे ऐसा किसी की जर्नी संगिनी में मैंने कभी किसी की मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम जब संगिनी से जुड़े तो हमने सिर्फ एक एंजॉय करना सीखा था कि लाइफ में पीछे की बातें सब भूल जाना और आगे बढ़ते चल जाना. तो मुझे अभी जो दीदी का सुना, मैंने अभी सुना है कि दीदी की क्या स्टोरी है. और दीदी को मैंने हमेशा बहुत ही एक इंस्पिरेशनल एक माना है कि वो बहुत हिम्मत वाली हैं. अभी लास्ट टाइम में उनके कुछ साल पहले बहुत फेसेस देखे हैं मैंने, लेकिन पर अभी भी जैसे प्रणव दादा ने बोला है कि उनकी स्माइल ही सब कुछ है. और हमेशा वो हंसती रहती हैं. कभी उनके चेहरे पे कभी कोई ऐसे शिकन ही नहीं दिखने देती हैं वो. तो बस तोशी लव यू. और ऐसे ही हमारा संगिनी ग्रुप आगे बढ़ता चले जाए. एक दिन मैं भी यहाँ पे आके डिम्पल दी को बोलने वाली हूँ. मैं भी यहाँ बहुत जल्दी आने वाली हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू. So yeah, very sweet. Neha, how has been your latest report? Sorry, आप म्यूट पे हो नेहा. जस्ट अ मिनट. हाँ सॉरी. अच्छी आई है रिपोर्ट दीदी. पैट स्कैन में तो मतलब अभी वैसे तो कैंसर फ्री बता रहा है सभी कुछ. और बट अभी कीमो बंद नहीं कर रहे. 12 मुझे लग चुके हैं और अभी मुझे बता नहीं रहे कि कितने कीमो और लगेंगे. और एक बस वो थोड़ा सा एंजियोमा टाइप का मुझे कुछ 1-2 चीजें आई हैं. वो थोड़ा सा बस कोई कह रहा है दिखाओ, इसका सेकेंड ओपिनियन लो. अदरवाइज ऐसे ठीक है, सब कुछ बढ़िया है आप लोगों की सबकी ब्लेसिंग से. Congratulations, very happy for you. Very happy. ऐसे ही दिन निकल जाएंगे और आप फिर से अपना दोबारा एक स्टोरी शेयर करोगे. Right, thank you. Hi किरण जी, would you like to share? आप म्यूट पे हैं किरण जी. हाँ. Hello. Yeah, I was trying to. हेलो. यही मैं बता रही हूँ कि ये नेहा से भी बहुत सीखने जैसा है. अभी इतने सारे ट्रीटमेंट चल रहा है और फिर भी इतने इजीली वो बता रही है 12 कीमो के बाद में. मतलब कीमो के टाइम पे किसी का इतना उससे बोलना
तो हैट्स ऑफ टू यू नेहा। और तोशी का तो मैं क्या बोलूं, हम लोग फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग। तो उन्होंने इतने फेसेस देखे हैं, पर उसके बाद भी कभी मतलब मैंने एक बार ये बोला कि इतना सीखने जैसा है एकदम। तो एक बार मैंने ऐसे बोला कि नजर नहीं लगनी चाहिए इनके, जो इतनी स्ट्रांग है ना, तो नजर नहीं लगनी चाहिए। तो उनका यही कहना था कि अब इससे ज्यादा क्या नजर लगेगी, मतलब उनके साथ इतनी सारी चीजें हुई हैं। तो घर में भी बहुत सारी ये जैसे मदर इन लॉ का हुआ है, फिर इनकी जो बड़े जो जेठ है उनके बेटे का भी हुआ, एक यंग एज में एक्सीडेंट हुआ, जॉइंट फैमिली में है ये लोग। तो वो भी बहुत एक यंग एज में हुआ काफी, तो वो भी बहुत दुखद था। फिर इनके अभी लास्ट 2 साल पहले हस्बैंड भी नहीं रहे एक्सीडेंट में, तो वो भी फेज बहुत मुश्किल था। तो बहुत काफी टफ टाइम से निकली हैं, पर कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि बिल्कुल बैठ गए कि बस अब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब अब नेक्स्ट क्या है ऐसा हमेशा उनका थिंकिंग रहती कि ठीक है, मतलब हमें लगता है कि नहीं यार बाप रे कैसे, पर वो आगे आगे बढ़ जाती कि नहीं ठीक है, मतलब अब हो गया तो बहुत स्ट्रांग है। और मतलब सीखने जैसा है बिल्कुल। कई बार हम लोग पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में जब हमने ऐसा सब देखा, तो हम लोग यही आपस में था कि यार बहुत मतलब हैट्स ऑफ है। कोई वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए कि एक के बाद एक 4-5 बार ऐसे ट्रॉमा हुए हैं जो पूरा हिला के रख दे, लेकिन बिल्कुल एकदम वैसे ही खड़ी हैं और बहुत जल्दी अपने आप को संभाला, अपने आप पूरा आगे बढ़ी। तो ओह माय गॉड, ओके या मतलब बहुत हाँ, कई चीजें ऐसी जो मैंने अभी बोली नहीं है, पर बहुत मतलब बहुत टफ टाइम से निकली हैं, बहुत टफ टाइम से। मतलब कैंसर एक बहुत छोटी मोटी चीज है, वो बहुत टफ टाइम से निकली है, पर फिर भी एकदम स्ट्रांगली हर चीज को लेके खड़ी हैं। तो मतलब क्या बोलूं। थैंक यू किरण। लव यू तोशी, लव यू। और ऐसे ही हमेशा हंसते रहना, हम सब मिलके एकदम सब चीजों से निकल बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, अभी तक भी ऐसे निकले हैं दोस्तों और का आगे साथ भी हो तो निकलेंगे। निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इस ग्रुप में भी जो भी सब लोग सुन रहे हैं सभी की, हाँ अब हम अगर एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे तो जरूर निकलेंगे आगे। बिल्कुल। वंडरफुल मनीता जी, आपके पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और आप सबके लिए सपोर्ट ग्रुप भी है। सो वेरी सॉरी टू हियर ऑल द डिफिकल्ट टाइम्स दैट यू हैव गॉन थ्रू। इट्स नॉट इजी, एक के बाद एक जो मुश्किलें आई है, बट आपने जितनी आसानी से सब कुछ शेयर किया है, एक बार भी नहीं लगा कि और भी बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। सो आई होप एंड प्रे दैट आगे सब कुछ अच्छा रहे। बिल्कुल। यस, किरण जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बस वही बोलना चाह रही थी कि ये इतनी सब चीजों में जैसे ऐसे कुछ भी अगर निगेटिव हुआ है तो उसमें से कैसे पॉजिटिव निकालना है, वो भी इन लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि बड़ी भाभी के बेटे का, तो इन्होंने जो अंश फाउंडेशन स्टार्ट किया है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फाउंडेशन है, मतलब वो इतनी सारी चीजें करते हैं। जैसे मैंने बताया हम लोगों का फर्स्ट फैशन शो जो रैंप वॉक करवाया था इन लोगों ने कि कैंसर सर्वाइवर्स का, उसके अलावा ब्लाइंड स्कूल में हम लोग गए थे इन लोगों के साथ में, तो वहां पे से कंपटीशन कराया। तो वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो गाने गाए, मतलब इतने खुश थे वो लोग, इतने खुश थे कि वो अपने को साल भर का सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हमने इतने सारे दिनों का कुछ अच्छा किया है। तो मैं भी थी वहां पे, मैंने देखा बच्चे जो गा रहे थे, मतलब इतने खुश थे, इतने उनके लिए क्लैपिंग हो रही है, गा रहे हैं, माइक मिला है, तो बहुत ही खुश थे। तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला वो। इस तरह से कई चीजें ये लोग अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी इन्होंने खूब डिस्ट्रीब्यूट किया सब कुछ, मतलब और उसके अलावा भी कई क्लब से और उससे भी जुड़े हुए हैं। तो अंश फाउंडेशन जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, साल में 6-7-8 एक्टिविटीज ये लोग करते हैं। सब दूर से पुराने ये क्लोथ्स वगैरह कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज। तो जो अगर कुछ खराब जो एक्सपीरियंस है उससे कैसे ऊपर आते हैं और कैसे उसको चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव करके दूसरे तरीके से लोगों की हेल्प करना, ये सब बहुत अच्छा अंश फाउंडेशन का है। तो उसके लिए भी बहुत बधाई। थैंक यू। अमित जी, would you like to share something? सॉरी आप म्यूट पे हैं। या हेलो।
Yeah. Am I audible? Yes. No, I really don't have to. I don't want to share anything, but I think Anita ji is definitely a inspiration. Thank you for sharing your journey. Thank you. And all of us, we go through our set of issues, problems, disappointments with wrong diagnosis coming in. And I guess it helps when you realize that, okay, you are not alone and there are others also who are going through the same set of problems that you are going through. There's anger, there's fear, there's wanting to cry, there's wanting to laugh, there's wanting to run away, all those different emotions which come in. So so to me, I think sharing in this forum is the biggest thing that Anita ji you have done to give us hope that like you, we too will clear this journey, and one of these days we will also give a talk like you of how we did it. Yeah. Thank you so much. Thank you, Amit ji, and we all pray कि आप भी जल्दी से रिकवर हो जाएं और एक दिन अपना स्टोरी यहाँ पे शेयर करें. और thank you for sharing your thoughts with us. I would like to hear from Pankaj ji. Thank you, Dimple. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sure. अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए. बहुत ही पावरफुल स्टोरी है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. आप इंदौर से हैं, मेरा नैनीताल इंदौर में है, और आपने भोपाल में अपना ट्रीटमेंट लिया, और मेरा कैंसर जो है वो डिटेक्ट भोपाल में हुआ था जब मैं भोपाल में मैं यूनिसेफ के साथ काम करता हूँ, वाटर सैनिटेशन हाइजीन स्पेशलिस्ट. अभी भी भोपाल में ही काम कर रहा हूँ. अभी फिलहाल मैं जयपुर से काम करता हूँ. तो जैसा आप अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी, तो मुझे भी वही मेरा पहला दिन याद आया. विद इन 24 आवर्स माई लाइफ वॉज ड्रेस्टिकली चेंज्ड. कि मैं सिर्फ एम्स भोपाल में गया था अपने पैर को दिखाने के लिए. कुछ एक छोटी सी गांठ मुझे नजर आ रही थी. 24 घंटे रिपोर्ट आई में मेरा जिसने कंफर्म है, और उसके बाद और सर्जरी हुई क्योंकि मेटास्टेसिस टेक्निकली डॉक्टर से बिकॉज इट इज मेटास्टेसिस, सो ये स्टेज 4 के बराबर है. बट जो इम्पोर्टेंट बात मेरे साथ रही कि मैं लगातार फॉलोअप्स करता रहा. तो जो 2 बार मेरे साथ मेटास्टेसिस हुआ, मेरे लंग्स में छोटे नोड्यूल पकड़े गए, वो इस वजह से कि फॉलोअप्स मैं लगातार हर 3-3 महीने में करता रहा. तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको हमको समझ में आनी चाहिए, कि जो भी आपके फॉलोअप्स हैं, आपकी सर्जरी हो, चाहे केमोथेरेपी हो, या और भी कोई ट्रीटमेंट हो किसी प्रकार का, तो उसके बाद में ये फॉलोअप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं. उनको टाइमली करा करें, ताकि अगर बाय द वे कभी रिकरेंस होता है तो आप उसको बहुत जल्दी पकड़ सकें. दूसरी बात आपके साथ जो शेयर करना चाहूंगा वो ये कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन था कि व्हाई मी, कि मैं ही क्यों, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम पूरा बात करके चल रहे थे और हमेशा इस तरह की तैयारी थी कि कभी कोई डिजीज आएगी तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे. Because we had a very strong disease history in our family, that my father, my uncle, they had heart disease, और उनके लगभग ऑलमोस्ट 49-50 में उनकी बाईपास हो चुकी थी. तो हम लोग तैयार थे हमेशा, मैं, मेरे ब्रदर या मेरे कजन्स, की ये बीमारी आ सकती है. बट एक नई तरीके की बीमारी आ गई हमारी फैमिली में, जो मेरे कहीं भी नहीं थी, ना मेरे फादर की साइड में, ना मदर की साइड में, 3 या 4 जनरेशन में. सो क्वेश्चन यही था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ. तो उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन का आंसर. बार बार, जैसे आप बता रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती थी, तो बार बार यही सवाल कि मेरे साथ क्यों हुआ है. लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि क्यों मेरे साथ हुआ. तो और भी कई चीजें ऐसी हैं जो मेरे साथ हुई, जो अच्छी अच्छी चीजें हुई, तो मैंने उसके बारे में थोड़े पॉजिटिव थॉट्स लेना चालू किया कि ये चीज मेरे साथ अच्छी हुई. तब तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा भगवान से कि ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज और बेटर हुई मेरे साथ में, मेरी लाइफ में मुझे अच्छी नौकरी मिली, मुझे अच्छी पढ़ाई करने को मिली, या मुझे अच्छी फैमिली मिली. तो मैंने तभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा भगवान से कि मेरे साथ क्यों. तो अब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन को पूछने का. और अब आगे देखना ये है कि बेस्ट हम अपने लिए क्या कर सकते हैं. तो 3 सर्जरी हुई, 2 बार केमोथेरेपी हुई, और वही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, जब मुसीबत आती है सर के ऊपर, तो नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं. उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और मेरे को लगता है कि अवॉइड करना भी नहीं चाहिए नेगेटिव थॉट्स को.
अगर हैं तो उनको आने दें, उनको निकल जाने दें, फिर उनको आने दें, निकल जाने दें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये प्रेशराइज होकर के रखेंगे कि हमको हमारे को पॉजिटिव ही रखना है, हमको पॉजिटिव ही रखना है, तो वो एक अलग से एक प्रेशर और क्रिएट होता है हमारे ऊपर। तो बट आपकी बहुत पावरफुल स्टोरी है, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। वेरी कहें फाउंडेशन के साथ में थोड़ा मैं और उसके बारे में सुनना समझना चाहूंगा, कनेक्ट होना चाहूंगा कि और कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और के लिए यूएस लगातार चल रही फ्रैंक फील की हो रही है, यू आर so powerfully, you know, portraying your strength, and all the best. ये सब निकल जाएगा, this too shall pass very soon. So thank you very much to both of you, and thank you very much, Dimple, for again a very nice session. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Sushil ji, would you like to share? नया तो कुछ नहीं, लगभग मैं सभी इसी बात से एग्री करता हूँ कि अगर इस ट्रीटमेंट की हायरार्की बनाई जाए तो हायरार्की में आप कुछ भी मिस कर दें, लेकिन एलोपैथी का जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है उसे कभी मिस ना करें। मतलब आप उसको स्किप नहीं कर सकते। बाकी जितने भी आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोचेस हैं उनमें से अगर कुछ दाएं हो जाए तो कर लीजिएगा, लेकिन वो नहीं किए। बाकी सबके एक्सपीरियंसेस वही हैं जो मैं भी अनुभव कर रहा हूँ एज ए केयर गिवर। And thanks for being the member of this group. Thank you. Thank you, Sushil ji. Thank you. Deepak ji. Yes, madam. हाँ जी बोलिए. Deepak ji, would you like to share anything? No, madam, nothing now. Thank you. How's your wife doing now? She is fine. Very nice. Now, Cargos, I believe, is continues. We are continuing. The tumor is reduced to only a half centimeter from 6 centimeter. Wow. Okay, that's big news. So everybody has to take the proper medicine with the nutrition. Nutrition, right. Very, very happy to hear. Yeah. Thank you. Wonderful. कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? साइड बाकी के कैमरास ऑफ है, so I'm not sure if right time to share, hence I'm not calling out names. But if anybody wants to share, तो आप अपने आप को unmute कर सकते हैं and share कर सकते हैं. Thank you. But great, Anita ji. It was wonderful meeting you, speaking with you, and इतना unique journey है आपका, and आपके the peace that we see on your face, that doesn't, speak about the struggles that you have gone through. And cancer was just one struggle, but there are many more struggles that you have gone through. But जो आपकी the spark and the brightness that I see, your smile, your peacefulness, it's just very inspiring. And probably, that's what, made you strong, courageous to go through this journey. And कि अच्छा कोई भी challenge आ जाए, इससे I'll go through it come what may. So very, very inspiring to know this. And thank you everyone for sharing your experience as well. It's been always grateful to hold this space for all of us. And Anita ji, anything that you would want to share as a last few words of today's session as a closing remarks? No, thank you so much. Thank you everyone for encouraging me. It will be a great boost for me. Thank you so much. Thank you. Thanks everyone. And we'll all meet you again next Saturday, 5 o'clock. Please take care and lots of love and blessings to all. Bye.